Good morning, children. Today we are going to study the lesson Madam Rides the Bus. Okay, so before we enter into the story, in this story, an 8-year-old girl first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mysteries of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. So, in this story, we see that there is an 8-year-old girl. The name of the girl is Valli, in short. Otherwise, you can call it Valiamma. Okay? And it is her first bus journey. So, through the bus, she goes into the outside world, outside her village. Okay? In this way, she is induced. Induced means introduced. She is introduced into the new world. The world in your home is very protected. There is limited knowledge, but outside the world, there are lots of mysteries, and one such mystery is about life and death. She sees the gap between our knowing that there is death. Means we have heard all about death, but not all of us understand it. So there is a difference between knowledge, okay, knowledge and अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग में और नॉलेज में अंतर होता है. ओके, दैट शी गेट्स टू नो हियर. नाउ, so before starting this chapter, let me introduce you to the author. The name of the author is Valli Kannan. Valli Kannan is a pseudonym of R.S. Krishnasamy. Okay, his original name is R.S. Krishnasamy. He was born on 12th November 1920 and his death was on 9 November 2006. So he died in the 21st century itself. He was originally a Tamil writer. He used to write in Tamil. He was a journalist. Journalist means a person who writes for newspapers. He was a critic also. Critic means a person who analyzes, appreciates और अंडरस्टैंड्स द वर्क्स ऑफ लिटरेचर. बाकी वर्क्स को भी वो क्रिटिसाइज करते थे. उनके बारे में क्रिटिसिज्म में सिर्फ गलतियाँ नहीं होती है, क्रिटिसिज्म में अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, क्वालिटी सब कुछ देखी जाती है. एंड ही वॉज ऑल्सो अ ट्रांसलेटर फ्रॉम तमिलनाडु, इंडिया. ही वॉज अ ट्रांसलेटर मीन्स फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. सपोज तमिल में लिखते थे तो वो इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट करते थे. ही वॉज अ ट्रांसलेटर ऑल्सो. नाउ लेट अस बिगिन with knowing him a bit more. Krishnaswamy was born in Rajavallipuram near Tirunelveli. He started writing at a very young age and had published 25 books. How many books did he publish? 25 books. By the time he was 30 साल की उम्र में कम से कम 25 बुक लिख चुके थे. He worked for magazines like Cinema Ulagam, Navashakti, Grama, Uzia and Hanuman. All these were his famous works. He also wrote under the pseudonyms of नैयाण्डी भारती. Pseudonym क्या होता है? लिखने के लिए एक अलग नाम, अपने ओरिजिनल नाम को छुपाने के लिए. जब लेखक कुछ ऐसे काम लिखते हैं जिस पे शायद कंट्रोवर्सी हो सकती है या फिर वो नाम अपना जाहिर नहीं करना चाहते हैं तो वो अपना एक नया नाम ले लेते हैं. नैयाण्डी भारती के नाम से भी लिखते थे. एंड कोरानथन. ओके, ही ऑल्सो रोट a total of 75 books in his life. क्या क्या? Novels, novellas, poetry collections, plays, essay anthologies. In 1978, he was awarded the Sahitya Academy Award. It's one of the highest literary awards given in the country India. For Tamil, for his critical work on modern Tamil poetry. Modern Tamil poetry के ऊपर भी criticism लिखा है इन्होंने. Uddukavitthayin Thottramam Valachiryam. Okay, the birth and growth of modern Tamil poetry. This is the meaning, this is the translation of this. Okay, now he died in 2006 as I told you. So now let us begin the lesson. Madam rides the bus. So there was a girl named Valiamai. As I told you in the beginning, in short, she was called Valli. In short, people called her Valli. Okay, now she was 8 years old and very curious about things. Curious.
The spelling is wrong. It is Curious. So she was curious about things around her. Curious means she had many questions like small children have. जिज्ञासा बहुत थी उसके मन में. Her favorite pastime was standing at the front doorway of the house. Favorite time pass. Pastime means समय व्यतीत करने का एक तरीका. ठीक है. Her favorite pastime was standing on the front doorway of her house. घर के सामने के गेट पे खड़ी हो जाती थी. Watching the happenings on the street outside. सड़क पे बाहर, घर के मेन डोरवे के बाहर जो रास्ता है, स्ट्रीट, द लेन, she would watch the things happening in that street. She had no playmates. No playmates means no companions of her age. खेलने के लिए अपने साथ की उम्र के बच्चे नहीं थे उसके साथ, तो वो अपना समय बाहर की सड़क को देखकर ही पास करती थी. And she had no playmates of her age in her street to play. और उसकी गली में, मोहल्ले में कोई उसकी उम्र का नहीं था. Watching the street gave her tremendous joy and new experiences. तो स्ट्रीट को देख के उसको ट्रिमेंडस जॉय की अनुभूति होती थी. ट्रिमेंडस मीन्स एक्सट्रीम, एक्सट्रीम जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी होती थी. जॉय इज़ हैप्पीनेस एज यू ऑल नो. एंड न्यू एक्सपीरियंसेस, ना खुशी बस बल्कि एक्सपीरियंस भी होता था उसको, बहुत सारे अनुभव भी होते थे, नए नए अनुभव. और अनुभव एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान सीखता है. ओके, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल. फैसिनेटिंग मीन्स attracting. What used to attract her more? Most मतलब सबसे ज़्यादा उसे क्या चीज़ आकर्षित करती थी? The bus that traveled between her village and the nearest town. विलेज और शहर के बीच में जो बस आना जाना करती थी, जाना और आना करती थी, वो बस उसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी. ओके, इट वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर हर. ये उसके लिए एक बहुत खुशी का स्रोत था. ठीक है, अनएंडिंग जॉय. Now, so the bus and gradually riding the bus. बस तो उसके लिए खुशी का, जॉय का सोर्स था. बस और ग्रेजुअली बस पे घूम के आना, बस पे एक राइड करके आना, ये दोनों चीज़ें उसके लिए एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गया. द बस ग्रू इनटू एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर. ओवरवेलमिंग मीन्स ओवर पावरिंग. ओवर पावरिंग वो होता है जो आपके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल कर ले. तो ये ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गया था बस में घूमना, क्योंकि वो कभी घूमी नहीं थी बस में. सो ये उसके दिमाग में घर करता ही गया कि मुझे बस में घूमना है. ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली गैदर्ड इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. ओवर मैनी डेज एंड मैनी मंथ्स, बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक शी यूज टू गैदर इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा, फैक्ट्स. शी वुड गैदर फैक्ट्स. लोगों से बात करती, बस में आने जाने वाले यात्रियों से बात करती. सो शी गैदर्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. बस से जर्नी कैसे करनी है. सो व्हाट आर द इन्फॉर्मेशन शी गैदर्ड? लेट अस फाइंड आउट. शी गैदर्ड दैट द टाउन वाज 6 miles अवे फ्रॉम हर विलेज. 6 मील की दूरी पर जो शहर है वहाँ बस जाती है. द फेयर वॉज 30 पैसे. सो दिस इज द सेकेंड इन्फॉर्मेशन. 30 पैसे वन वे. ओके, 6 miles ये पहली इंफॉर्मेशन है. 30 पैसे वन वे. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes. सो टाइम, डिस्टेंस, अमाउंट, मनी एंड टाइम. शी प्लान्ड हर ट्रिप वेल. अपनी जर्नी को अच्छे से उसने प्लान कर लिया. वंस फाइन स्प्रिंग डे. फाइन स्प्रिंग डे मतलब इट वॉज अ गुड डे. स्प्रिंग डे इट वॉज. शी टुक द आफ्टरनून बस टू द टाउन. दोपहर की बस ले लेती है वो शहर जाने के लिए. एंड द कंडक्टर वॉज अ जॉली शॉट ऑफ फेलो. जॉली शॉट मतलब ही वॉज फ्रेंडली, मजाकिया. फ्रेंडली, जोवियल. जोवियल मतलब मजाकिया, मजाकिया किस्म का आदमी था जो कंडक्टर था. ओके, इट वॉज द स्लैक टाइम व्हेन वैली गॉट इनटू द बस. स्लैक टाइम मीन्स नॉट रश. रश नहीं थी, हड़बड़ी वाला वक्त नहीं था, खाली स्लैक टाइम था. उस समय ज़्यादा यात्री नहीं थे, भीड़ भी नहीं थी. वैली गॉट इनटू द बस एट दैट टाइम. ही जोकिंगली कॉल्ड हर मैडम. तो वो चूंकि मजाकिया किस्म का आदमी था, उसने उसको मैडम करके पुकारना शुरू कर दिया. वली फाउंड द बस अट्रैक्टिंग. अट्रैक्टिव होना चाहिए. शी फाउंड द बस अट्रैक्टिव. उसे लगा कि बस तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है. इट वॉज अ न्यू बस पेंटेड विद ग्लीमिंग कलर्स. सो द बस वॉज क्वाइट न्यू. इट वॉज न्यूली पेंटेड
and the colors were gleaming. Gleaming means shining. All the colors were shining. Now Valli bought a ticket for herself. उसने अपने लिए एक टिकट खरीद ली. And then Valli also enjoyed outside view through the window. She saw a canal, palm trees, grassland, distant mountains, the blue sky, acres of green fields. Acres मतलब a huge measure of area. एक यूनिट है जिसमें हम लैंड को मेजर करते हैं. ठीक है. वल्ली हैड लाइट हार्टेड कॉन्वर्सेशन. लाइट हार्टेड मीन्स फुल ऑफ जोक्स. मजाक में वो बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करती है. किन के साथ? विथ सम ऑफ द पैसेंजर्स. कुछ पैसेंजर्स के साथ. नाउ शी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर देम. वो सभी के ध्यान का केंद्र बन गई थी. क्यों? क्योंकि अकेली बच्ची ट्रैवल कर रही है, सभी का ध्यान उसकी तरफ जा रहा था. सडनली वैली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. सडनली उसने खुशी के मारे अपने हाथ को ताली बजाने लगती है. ताली जब बजाने लगती है, ग्ली मीन्स इन जॉय. ग्ली का मतलब क्या होता है? JOY, जॉय. खुशी के मारे ताली बजाने लगती है. देयर वॉज अ यंग काऊ रनिंग राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. एक यंग काऊ बस के सामने ही दौड़ती हुई आ रही थी. राइट इन द मिडल ऑफ द रोड. बिल्कुल सड़क के बीचों बीच, बस के बिल्कुल सामने. द एनिमल वॉज फ्राइटेंड एंड इट रैन फास्टर. क्योंकि बस का आना हो रहा था, तो जो ये काऊ है वो डर रही थी बस के आने से, तो वो और तेज तेज भाग रही थी. फास्टर. फास्टर इज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ फास्ट. एज द ड्राइवर हॉन्क्ड द हॉर्न. हॉन्क्ड मतलब ब्लो करना. टू ब्लो द हॉर्न. हॉर्न को जब ब्लो कर रहा था ड्राइवर, तो वो और तेज भाग रही थी. वली फाउंड इट वेरी फनी. उसे बहुत ये फनी लग रहा था. ठीक है. उसे बहुत हंसी आ रही थी. शी जस्ट लाफ्ड एंड लाफ्ड. बड़ी खुश थी वो, हंसते हंसते. एंड वली एंजॉयड एवरी साइट. सो हर साइट को वो एंजॉय करती है विथ एक्साइटमेंट. उसे बहुत एक्साइटमेंट भी होता है. शी डिड नॉट गेट ऑफ द बस एट द टाउन फॉर द फियर ऑफ बीइंग लॉस्ट. पर जब शहर पहुंचती है तो वो बस से उतरती नहीं है, क्योंकि उसे डर लगता है कि वो खो जाएगी. शी मेड हर रिटर्न जर्नी बाय द सेम बस. और वो लौट के भी उसी बस से आ जाती है. फाइन. वो बिना उतरे बस से ही जाती है शहर, और बस से नीचे नहीं आती, उसी बस से वापस लौट भी जाती है. तो उसकी तसल्ली हो गई कि वो बस में घूम के आ गई है. नाउ ऑन हर वे बैक द साइट ऑफ द सेम काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड मेड हर सैड. वही सेम काउ ऑन हर वे बैक, लौटते वक्त, रिट्रीट के समय, जब वो लौट रही है, सेम रास्ते से लौट के आ रही है, तो वही गाय जो उसे खेलती हुई दिखाई दी थी रास्ते में, भागती हुई, वो उसे मरी हुई दिखती है रास्ते में. शी वॉज लाइंग डेड. दिस मेड हर सैड. वो दुखी हो जाती है. पहले बहुत हंस रही थी, ऑन गोइंग जर्नी में शी वॉज लाफिंग. लौटते समय शी इज सैड, है ना. नाउ द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर एंड शी डिड नॉट लुक आउट थ्रू द विंडो एनी मोर. उसकी याद, डेड काउ की याद में वो बड़ी परेशान हो जाती है. बार बार उसको रह रहे के उसकी ही याद आती है, और अब वो बिल्कुल शांत होकर के बैठ जाती है, विंडो के बाहर भी नहीं देखती. शी डज नॉट लाइक टू लुक आउट ऑफ द विंडो एनी मोर. नाउ एट लास्ट द बस रीच द विलेज. लास्ट में बस कहाँ पहुँच जाती है? विलेज में आ जाती है. शी थैंक द कंडक्टर. कंडक्टर का वो धन्यवाद कहती है. गॉट डाउन द बस एंड वेंट स्ट्रेट टू हर होम. बस से उतरकर सीधे घर को चली जाती है. दिस वॉज हाउ शी हैड हर फर्स्ट बस राइड विदाउट लेटिंग एनी बडी नो अबाउट इट. इसी तरह से उसकी पहली जर्नी होती है बस में, और वो किसी को इसके बारे में बताती भी नहीं है. सो दिस इज हर जर्नी फ्रॉम innocence, 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 to experience, EXPERIENCE, एक्सपीरियंस. इनसेंस से एक्सपीरियंस तक की उसकी यात्रा. मासूमियत से ज्ञान. ज्ञान पाना इतना आसान नहीं है. ज्ञान जब हमें आता है तो हमें कई बार कष्ट का भी सामना करता है. उसका कष्ट क्या था? सैडनेस. कैसे वो सैड हो जाती है? सीइंग द डेथ. तो उसको एक्चुअली वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड की सच्चाई का यहाँ पता चलता है. उसने पहली बार इतने करीब से मौत को देखा था. शी बिकेम एक्सपीरियंस्ड. अब वो थोड़ी सी, उसको थोड़ा विजडम आ गया, उसको थोड़ी सी अकल भी आई है. सो दिस लेसन, द मेन थीम ऑफ द लेसन इज द जर्नी of human beings from innocence to experience. I hope children you understood the lesson. Thank you so much for watching.